Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gaur Haribal 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 Nitai Gaur Haribal Nitai Gaur Nitai Gaur Haribal Nitai Gaur Haribal Nitai Gaur Haribal Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakacarya Ashtottara Shata Sri Srimati Divine Grace Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON founder Acharya, BPT founder Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya Ashtottara Shata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्रीनिताय गौर सुंदर की श्री पानीहाटी चिड़ादही महोत्सव की श्री गौर निताय की श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are very, very happy to have the association of His Grace Sundar Sham Prabhu. Sundar Sham Prabhu actually is a very, very senior devotee from ISKCON Pune. His Grace Radhesham Prabhu, when he started his preaching in Pune, youth preaching, way in 90s. So the first batch of devotees who actually came to Krishna consciousness, His Grace Sundar Sham Prabhu is from that. He's an engineer from Bharatiya Vidya Bhavan, the college, and many devotees. And Prabhu joined ISKCON 25 years, 1998, around that year. And since then, he has been very steadily practicing Krishna consciousness. Prabhu is really known for his steady practice, his simplicity, and very unassuming dealings with devotees. Everyone actually gets along. We were very fortunate in our early years of growing in Krishna consciousness in IIT Kharagpur. Mukundila Prabhu will remember all of us. We had Prabhu's association very often. Prabhu would come every year for all our camps, Utkarsh festivals, then Vaishnav training workshops. Prabhu would spend time. So we were very blessed that we got so much nourishment from his teachings and association. I still remember we had one program where he spoke on Dhruva Maharaj at very length. I think teachings from Dhruva Maharaj. And Yeah, 2008. yeah, so it was like very, very minutely learning from his life and his experiences. So I was very blessed. So Prabhu is known for his great attachment to Srila Prabhupada books and spreading the holy name. Acharya Prabhu was mentioning, preaching encyclopedia, Srila Prabhupada books, questionnaires on that. So encourage devotees to read small books, big books, and they can solve those questions and then actually graduate further. So Prabhu has been actively doing that and inspiring devotees. He has been a youth preacher for 25 years, traveling all over the country to all the universities, to all the places. Initially, he was very, very instrumental in setting up NIT Warangal.
and that place. And then Prabhu has been traveling and preaching. Now also Prabhu is on a program to go to Mayapur to give associations to many devotees from Raurkela and other places to be here. So every time I see that Prabhu is in various places giving his association to youth and brahmacharis, taking care of them. So we're very blessed to have him with us and for his association. So let us welcome him to Shushinitai Gaurang Mandir ISKCON New Town by loudly chanting 3 times Haribo! 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 Praise Sundar Sham Prabhu ki! Srila Prabhupada ki jai. All our glory is so called is all because of Srila Prabhupada. If only Srila Prabhupada would not have been there, I doubt whether I would have got what do you call garland of chappal also or not. Because chappal garland also to stitch it and all, somebody has to take effort. That much also I don't deserve. But Prabhupada's grace, we are all blessed. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. यस प्रभु निवेदन कर रहे हैं कि मैं हिंदी में आज का प्रवचन दूं, तो मैं हिंदी में प्रयास करता हूँ. वैसे हमें तो एक भी भाषा ठीक से आती नहीं, न हिंदी, न मराठी, न इंग्लिश, न बांग्ला, तो जो भी है, तो लेकिन भक्तों की सेवा के रूप में आज बहुत ही पवित्र दिन है जिस दिन हम मना रहे हैं पानीहाटी चिड़ा रही फेस्टिवल. तो ये जो उत्सव है तो सबको पता ही है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी भक्त को कृपा प्राप्त होती है तो उससे हमें ये आश्वासन प्राप्त होता है कि हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, कि भगवान कितने दयालु है. जैसे स्वरूप ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने से बहुत प्रयास किए, विचार है भगवान को जीवन समर्पित करना है, लेकिन वो भी अपने बलबूते पे नहीं होता. कितना भी प्रयास कर, कितना भागे वो, कितना भागे, इतना तो मुझे नहीं लगता कोई ब्रह्मचारी भागा होगा आश्रम ज्वाइन करने के लिए. इन्हें बहुत भागे, लेकिन सवाल ही नहीं उठता था. जब तक नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है, तो गुरु की कृपा प्राप्त होती है जो नित्यानंद प्रभु के द्वारा आती है, तभी जाके हम भगवान को समर्पित हो सकते हैं. तो इसलिए हमारा कुछ नहीं है. भगवान भगवगीता में 3रे अध्याय में कहते हैं निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः, कि निर्मम, मेरा कुछ भी नहीं है. तो जो हम यहाँ बैठे हैं व्यासासन पे, आप बैठे हैं नीचे, एक तो श्रोता के रूप में या वक्ता के रूप में, ये हमारे बलबूते पे नहीं है, ये सब कृपा है. कृपा के द्वारा ही संभव है. वैसे तो हमारा जो पद्धति है वो साधन सिद्ध प्रणाली है, हम सब साधन कर रहे हैं और ये आशा है कि आगे जाके सिद्ध बनेंगे, भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे. दूसरे होते हैं नित्य सिद्ध,
जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है और बहुत सारे छः के छः गोस्वामी, जो मंजरी है, रूप मंजरी, लवंग मंजरी इत्यादि, वो सब इस संसार में आए तो वो नित्य सिद्ध है, बस हमारे उद्धार हेतु आते हैं। और तीसरे हैं कृपा सिद्ध, जिनको कृपा प्राप्त होती है, जैसे मानिए जगाई मधाई है, उनके साधना तो क्या थी, पीते जाओ रोज का स्कोर बॉटल का स्कोर है, कितनी बोतल पीते गए, जो भी था वो देसी दारू, शराब उस समय की, तो वो उनका स्कोर था। तो क्या साधना की, मुझे भी कुछ मंगल आरती नहीं, नरसिम्हा आरती नहीं, 16 माल तो छोड़िए, एक माला जप नहीं, हरि नाम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन नित्याप्रभु की कृपा हो गई, बस कृपा सिद्ध बन गए। तो हम तो कृपा सिद्ध नहीं कह सकते अपने आप को, हमें तो साधना दी गई है हमारे गुरु परंपरा के द्वारा, तो हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक, श्रद्धा फिर साधु संग हुआ, भजन क्रिया जारी है हमारी, अनर्थ जा रहे धीरे धीरे। आशा है कि हम भक्तों का अपराध न करते हुए अनर्थों को बढ़ा नहीं रहे हैं। जैसे कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत की सेवा करके अनर्थ कम कम होते जाते हैं, प्राय नील, प्राय झूरो शून्य हो जाते हैं, और उसके बाद सत्वगुण में व्यक्ति स्थित हो जाता है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये। लेकिन अगर अपराध करेंगे भक्तों के तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा। अपराध टालने से, भक्ति करते रहने से रजोगुण तमोगुण कम कम होता जाएगा। तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्ये चेतयेते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। सत्वगुण में आ जाएगा व्यक्ति बहुत जल्दी, और फिर शुद्ध सत्वगुण में। नहीं तो अपराध करेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। ये बहुत सारे इस्कॉन के प्रतिनिधियों में पाया गया है। बहुत अपराध करने से उनका रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ गया कि वो उनको, एक तो जो आश्रम में स्थित है, ब्रह्मचर्य आश्रम या संन्यास आश्रम, वहां से बाहर चले गए, या भक्ति के मार्ग से भी च्युत हो गए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि दो ही प्रकार के भक्तों का पतन हुआ है, दो प्रकार से। एक तो लीडर्स, जिन्होंने अपने अंतर्गत जो भक्त थे, जो भी उनके अनुयायी वगैरह, उनके प्रति जो अपराध किए, उनको चैस्टाइज किया, उनका जो द्वेष है उसके कारण ही, अपना खुद का द्वेष के कारण किया, तो उनका पतन हो गया। और दूसरा फॉलोवर्स, जिन्होंने लीडर्स को क्रिटिसाइज किया समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले नीचों को ताने मार रहे हैं, नीचे वाले ऊपर वालों को गोली मार रहे, तो ऐसे करके वो सब लोगों का पतन हो गया। तो इसलिए बहुत सावध रहना चाहिए, तो फिर अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाएगी। अगर अपराध नहीं कर रहे, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। कृष्ण नाम कितना ले रहे हैं हम रोज, 16 माला, 27,648 होली नेम्स, 27,000 से अधिक हरिनाम कम से कम ले रहे हैं। 4 दिन के अंतर्गत हम लखपति बन जाते हैं। 1 लाख हरिनाम का स्कोर है हमारा, 4 दिन में ही, 4 दिन से ही थोड़ा कम, 3.5 दिन में। तो फिर भी हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम अपराध करते हैं। तो इसलिए अपराध से बचना चाहिए। फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा, सत्वगुण में स्थित होकर व्यक्ति बहुत ही स्थिर रहेगा। फिर आगे रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, वो तो फटाफट होने वाला है, क्योंकि वो पर्वत के नीचे उतरने के समान है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रयास लगता नहीं। जैसे साइकिल चला रहा है, ऊपर चढ़ाना है तो पैडल से नहीं होता, उतरना पड़ता है, धक्का मार मार के ऊपर चढ़ गया। फिर प्लेटो आता है, वो निष्ठा प्लेटफॉर्म के समान है, तो निष्ठा के ऊपर आसान है। फिर आगे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो तो बस हैंडल को ठीक से पकड़ना है। बस हो सकता है ब्रेक भी थोड़ा बीच बीच में मारता रहना पड़े, है ना। ज़्यादा भक्ति हो रही है तो थोड़ा भक्त बाकी बोलेंगे, प्रभु जी थोड़ा धीरे धीरे, हमसे नहीं सहन हो रहा है, इतनी आपकी भक्ति तीव्र। तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ अनर्थ निवृत्ति में फंसे हैं। हो सकता है कभी कभी लाखों जन्म चले जाए। बहु जन्म कोरी यदि श्रवण कीर्तन, तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए श्रवण करते रहिए, ऐसे भागवतम क्लास अटेंड करते रहिए, और करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए भागवतम बोलते रहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर भी आपको कृष्ण के चरणों में, चरणों की प्राप्ति नहीं होगी, अगर आप अपराध कर रहे हैं तो इस अपराध से ही बचना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये थोड़ी खुजली हो जाती है, जैसे अभी मुझे बोला है प्रवचन के दरमियान, ये करताल को आप हाथ मत लगाइए। अच्छा, करताल को हाथ नहीं लगाना, समझ रहे, करना नहीं है उसको, लेकिन इतनी खुजली है, अरे ये क्या है, करताल को हाथ क्यों नहीं लगाना, समझ रहे ना। बहुत आसान है, करताल को हाथ मत लगाओ, करना कुछ नहीं आपको बस, लेकिन हाथ उधर ही जाता है। तो ये हमारी खुजली है,
जिसको अपराध करने की, अपराध करते रहते भक्तों के प्रति, फिर इतना पतन होता है, इतना पतन। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं जैसे बरसात में पानी की बूंदने बूंदे कितनी गिरती है, वैसे भक्तों का पतन होता है अपराध के कारण। तो अपराध से बचना चाहिए। तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये तो नित्य सिद्ध है, लेकिन फिर भी हम जो साधन सिद्ध है, हमें कृपा की बहुत ज़रूरत है। कृपा प्राप्त हो जाए तो हमें सब कुछ हो, साधन तो करना है, लेकिन साधन के द्वारा कृपा की हम अभिलाषा करते हैं, प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, भक्तों की, और आचार्यों की परंपरा की, कृष्ण की कृपा आएगी, गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा आएगी, वैष्णवों के द्वारा। बस कृपा के ही हम भिखारी है। तो ऐसे हम कृपा कृपा करते बोलते नहीं रहते। भक्तों की कृपा है, उनके उपदेश। तो उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, रोज सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, जप करो ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, भागवतम अटेंड करो, प्रसादी लो, 4 नियमों का पालन करो, और रूप गोस्वामी पाद के द्वारा दिए हुए 64 भक्ति के अंगों को प्रयास करो। तो ये सब हम कृपा ही है हमारे जीवन में, लेकिन इसमें हमारा प्रयास महत्वपूर्ण है। ये सब करना पड़ेगा मुझे। ऐसे नहीं खाली नो, कृपा दीजिए प्रभु कृपा दीजिए, और वो कृपा दे दी और मैं शुद्ध भक्त हो गया, बस 1 डे डन। ऐसे नहीं, वो तो पूरे जीवन भर करते रहना पड़ेगा, और जन्म ही हुए तो और भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें तैयार होना चाहिए, लेकिन कृपा के लिए ज़रूर इच्छा करनी चाहिए। जैसे 12वें अध्याय में भी भगवान जो भक्ति योग में कहते हैं कि मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। बस मेरे ऊपर ही मन लगा दो तुम। तो लेकिन भगवान को पता है ये साधारण बात नहीं है। हम जब करते करते मन के ऊपर ध्यान नहीं, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर पाते, तो ऐसे कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। एक क्वालिफायर लगा दिया है। ठीक है, फिर साधन भक्ति में लग जाओ। तो उसके अंतर्गत जो भी हम कर रहे हैं, ये 64 अंग वगैरह, यही करना है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज बताइए एंड में, चौथे लाइन में, माम इच्छाप्तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से हे धनंजय। तो ये हमारा होता है क्या अंदर। इस्कॉन के अंतर्गत हमें तो पोस्ट पोजीशन के पीछे है ना, कब मिलेगा पोस्ट, कब मैं बनूंगा ब्रह्मचर्य आश्रम का कमांडर, कब बनूंगा काउंसलर, कब बनूंगा टेम्पल का प्रेसिडेंट, या जीबीसी, या सन्यास कब होगा मेरा, या फिर गुरु कब बनाएंगे, या ये वो। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा न रखते हुए ये पोस्ट पोजीशन, इसके पीछे भागते हुए जो करेंगे, तो वो उसमें कमी है, बहुत कमी है। तो वो भटक जाएगा। वो ऐसे बहुत सारे नेता लीडर्स भटक गए। तो इसलिए बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे से प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ेंगे रोजाना के तौर पे, तो ये सब अनर्थ नहीं उपस्थित होंगे, और जो है उपस्थित हमारे हृदय में, वो सब धीरे 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 चले जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथा है ये बहुत ही लंबी है। इसमें तो करीबन 300 से अधिक श्लोक है, और समय तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में और आज का जो उत्सव है उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करते हुए हम चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये हमारे पहले 6 गोस्वामी से एक है जो चैतन्य महाप्रभु को सर्वप्रथम मिले। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही संन्यास लिया और वृंदावन की तरफ भाग रहे थे नित्यानंद प्रभु के उनके ट्रिक करने से, फिर वो शांतिपुर में लाए गए अद्वैताचार्य के घर में। वहाँ 5-7 दिन का बड़ा संकीर्तन हुआ। तो उस मौके का लाभ उठाते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ महाप्रभु से मिलने जाते हैं। वो गृहस्थ आश्रम में थे उन दिनों में। और फिर उसके बाद महाप्रभु फिर जाते हैं पुरी में। उसके बाद दक्षिण भारत यात्रा में फिर गोपाल भट्ट जो उन वेंकट भट्ट के पुत्र थे, उनका सौभाग्य रहा महाप्रभु के वो गेस्ट रिसेप्शनिस्ट रहे। बाद में महाप्रभु का जो अटेम्प्टेड विजिट था वृंदावन के लिए, वहाँ रूप सनातन महाप्रभु को मिले, और छोटा जीव भी थोड़ा उधर उनका संग प्राप्त किया दूर से थोड़ा। और फिर उसके बाद जब महाप्रभु असलियत में गए वृंदावन, तब फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उनका संग प्राप्त हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने का ये मौका मिला था। तो वैसे बचपन में ही उनके जो बलराम आचार्य जो अद्वैताचार्य के शिष्य रहे, उनकी कृपा से वो एक बार छोटे रघुनाथ को वो लेके गए हरिदास ठाकुर के पास। और हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, हाँ, वो तो हरिनाम लिए बिना अनाज का एक कण अपने मुंह में नहीं डालते थे, और पानी की एक बूंद स्वीकार नहीं करते थे जब तक उनका 3 लाख हरिनाम रोज का न हो तब तक।
192 माला से अधिक, यानी 22 घंटा तो उसी में ही चले गए। तब उसके बाद वो थोड़ा सा प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे, थोड़ा सोना वगैरह, क्या बचता है वो 2 घंटे में कितना करेगा आदमी, तो वो भी नहीं होता था वैसे एक तरीके से। तो ऐसे महान आचार्य को देखकर रघुनाथ का यही विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति के पास जो है वो सबसे बड़ा धन है और मुझे यही धन चाहिए। जैसे अभी कभी हम धनी लोगों को देखते हैं, कभी कभी हमारे मन में ये अनर्थ उठ जाता है कि अरे मेरा भी ऐसा धन होता, मेरा भी जीवन बन गया होता। तो उनको ये कृपा प्राप्त हो गई पहले हरिदास ठाकुर के द्वारा, जिसके द्वारा इतना आकर्षण हुआ उनको भक्ति के प्रति और वो वैराग्य के प्रति। हाँ, तो घर में उनका मन नहीं लगता था, बड़े भी हो गए, तो उनका विवाह भी किया गया था, लेकिन फिर भी उसमें भी उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो बहुत सारी कथाएं हैं, थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे और थोड़ा ये विषय को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। तो उनके जो पिताजी थे गोवर्धन मुजुमदार और चाचा जी हिरण्य मुजुमदार, तो ये बड़े मुजुमदार थे, टैक्स कलेक्टर थे, तो बहुत टैक्स कलेक्ट करते थे। 20 लाख उनको मिलता था महीने का, उसमें से उनको देना होता तो होता था 15 लाख, और 18 लाख देना होता था, और उसमें से या 17 लाख, और 3 लाख वो रख सकते थे अपने पास गोल्ड कॉइन, लेकिन वो 15 लाख ही देते थे कुछ तो, और बाकी भी अपने पास रखते थे। तो यहाँ का एक मुस्लिम चौधरी था, उसको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि यही सब कुछ खा रहे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर वो आते हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए, हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार। जैसे ही पता चलता है तो वो दोनों भाग जाते हैं घर से, और पकड़े जाते हैं रघुनाथ। तो रघुनाथ को वो बहुत धमकाता है, उनके ऊपर अत्याचार तो नहीं करता, पिटाई करने की इच्छा होती है, लेकिन रघुनाथ का मासूम चेहरा देखकर उनको पीटने का दिल नहीं करता। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, वहाँ दास गोस्वामी नहीं है वो, लेकिन फिर भी रघुनाथ, वो उनको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि निपुण है वो, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है उनका। तो बोलते हैं कि आप और मेरे चाचा जी और पिताजी ये तो भाई भाई के समान है, भाई भाइयों में झगड़ा तो चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझौता करके मिटा देना चाहिए। बोले हाँ हाँ बेटे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बताओ अपने पिताजी को और चाचा को कि मैं भी तो थोड़ा सा प्राप्त करूँ इसमें से, तो तुम कर देना वर्ग। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से ये चले जाने के बाद वो सब सेटल कर देते हैं, और इनके ऊपर का इल्ज़ाम निकल जाता है। और फिर वो घर से भागने का प्रयास करते हैं, भाग के चले जाते हैं, लेकिन पिताजी ने कुछ तो 10 सिपाहियों को रखा था, वो उनके पीछे भागते थे, और कहीं भी दूर चले जाए तो उनको पकड़ के वापस लेके आते थे। ऐसे बार बार हो रहा था। तो इतना भी हुआ कि उनकी माँ ने उनके पिताजी को कहा कि अजी आप इनको, हमारे पुत्र को बांध के रखिए ना घर में, रस्सी से कस के बांध के रख दो, फिर कैसे भागेगा ये। तो पिताजी कहते हैं कि इनका जो ऐश्वर्य है इंद्र के समान है, ऐश्वर्य इंद्र सम, और पत्नी अप्सरा के समान है। ये दो चीजें जिसको बांध न सके, उसको ये सामान्य संसार की रस्सियां क्या बांध के रखेगी। इसके ऊपर चैतन्य चंद्र की कृपा मिली है, इसको कोई संसार की रस्सी या कोई बंधन बांध ही नहीं सकता, तुम उसके बारे में सोचो ही मत। तो इतना विश्वास पिताजी को था। देखिए, तो काफ़ी सारे हमारे ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं, तो माता पिता को वो विश्वास होना चाहिए कि हमारा बच्चा गया काम से जब उनको ये उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए मुंह से या मन के द्वारा, तो वो ब्रह्मचारी आइडियल ब्रह्मचारी है। नहीं तो फिर ये बहुत कुछ करता रहता है, वो सब करने की जरूरत नहीं, धमकाता है, ब्लैकमेलिंग करता है, इसमें दम नहीं है ये ब्रह्मचारी में। इसलिए माता पिता के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो अर्थात यहाँ आप बोलेंगे ये तो भाग गए थे, ये अलग बात है, ये भगवान की अलग कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और वो कृपा के द्वारा उनको भागना ही है। लेकिन अन्यथा घर में इतना भक्ति करना चाहिए, इतना भक्ति करना चाहिए ब्रह्मचारी को, कि फिर माता पिता बोले अरे भाई बहुत ज़्यादा हो गया है ना, पहले तो तू अकेला कर रहा था, इधर घर में तो हमें भी प्रचार कर रहा है, बच्चों को कर रहा है, जो भी पड़ोसी है उनको कर रहा है, रिश्तेदार उनको कर रहा है, पूरा गांव में तमाशा कर दिया तुमने। तो वो लेके खुद ही आपको जाके मंदिर में रख देंगे, और प्रेसिडेंट साहब आपके पास रखिए, घर में मत भेजिए जब भी मिलना है हम खुद ही आएंगे, या फिर इनको घर भेजना है तो हम बताएंगे कब भेजना है, तब तक भेजिए मत। तो इतना भक्ति करना चाहिए, रोज घर में 64 माला जप करना चाहिए। हालांकि ताकत नहीं है, मंदिर में 16 माला करते करते गिरता रहता है ये ब्रह्मचारी, तो घर में कैसे 64 करेगा, लेकिन करना चाहिए। प्रहलाद देखिए, है कि नहीं, पिताजी के द्वारा सर्टिफिकेट मिला कि नहीं, मिला ही मिला।
तो जो सर्टिफिकेट देने वाले को मार डाला भगवान ने। तो ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। तो फिर ये भाग रहे थे, फिर अंततः गत्वा उन्होंने देखा कि अपने प्रयास से तो कुछ हो नहीं रहा। फिर ये कथा आती है 42वें श्लोक से आगे। तबे रघुनाथ किचु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाईर पाश चलीला आराधीने। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा मैं तो इतना प्रयास कर रहा हो नहीं रहा, और अभी नित्यानंद प्रभु आए पानी आटी में, बहुत पास में ही है, तो क्यों ना उनसे जाके मैं ये कुछ विचार विमर्श करूँ और उनकी कृपा प्राप्त करूँ। पानी हाटे ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। पानी हाटे ग्राम में चले गए और प्रभु के नित्यानंद प्रभु जो बैठे थे वहाँ उनके दर्शन प्राप्त हुए। कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन, महा नित्यानंद प्रभु के साथ उनके बहुत सारे संगीगण थे जिसमें बहुत सारे कीर्तनिया भी थे। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, वसिया छेन ये न कोटि सूर्योदय करे। महाप्रभु कहाँ, ये नित्यानंद प्रभु कहाँ बैठे हैं? गंगा के तट पे। आप में से कितने जन गए पानी हाटी? आपके लिए तो बहुत ही पास में, प्राय कोई नहीं होगा जो नहीं गया। कितना वो रम्य स्थान है। आज उधर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज शायद कथा दे रहे हैं। हाँ, वो आज स्थान है, वो वृक्ष है इत्यादि। तो वहाँ फिर नित्यानंद प्रभु वो गंगा के तट पे, वो बैनियन ट्री है ना, उसके नीचे, वट वृक्ष के नीचे पिंडा के ऊपर एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर बैठे थे। वसिया छिन ये ना कोटि सूर्योदय करे, ऐसा लग रहा था कि मानो कोटि सूरज ही चमक रहे हो। ये नित्यानंद प्रभु की विशेषता है। ये पिक्चर देखना भी विशेष है, आप सब तो जानते हैं, लेकिन फिर भी यही वो वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तले ऊपरे बहु भक्त हैया छे वेष्टिता, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मिता। तो उसके नीचे भी बैठे थे भक्त, ऊपर भी कुछ भक्त बैठे हैं, और सब भक्तों से ही घिरे हुए हैं। ये देखकर महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का प्रभाव देखकर रघुनाथ बहुत ही विस्मित हो गए। दंडवत हैया से पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो नित्यानंद प्रभु हैं तो तुरंत उन्होंने दंडवत कर दिया, अष्टांग प्रणाम कर दिया अर्पण, लेकिन दूर से अर्पण किया उन्होंने, कत दूरी। तो वहां नित्यानंद प्रभु का एक सेवक था, उन्होंने कहा रघुनाथ दंडवत करे। नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दंडवत कर रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का ध्यान नहीं है। नित्यानंद प्रभु का क्या ध्यान नहीं है? नित्यानंद प्रभु का तो पूरा ध्यान है, लेकिन ऊपरी रूप से लीला के अंतर्गत नहीं है। तो भगवान भी गुरु के द्वारा भी हम देख सकते हैं, यहाँ गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी भक्त चाहिए बीच में। ये सेवक न होते तो नित्यानंद प्रभु मानो जैसे देखते ही नहीं थे, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो हमें भक्तों को कभी भी बीच में से निकालना नहीं चाहिए। गुरु प्राप्त हो गए, दीक्षा हो गई मेरी, अभी तो भक्तों की ऐसी की तैसी, ये नहीं चलेगा। जो ऐसे विचार वाले हैं वही अपराध करते हैं, फिर गुरु कृपा गई और कृष्ण कृपा भी चली गई। तो इसलिए भक्तों का जो हमारे जीवन में जो योगदान है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जितना भक्ति में प्रगति होता है उतना हमारा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता बढ़ता है। द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डिसाइड्स वंस अल्टीट्यूड। कितना भक्ति में ऊंचे है, ये आपके अंदर जो कृतज्ञता का जो भाव है कितना बड़ा है, उससे समझ में आता है। और जो मायावादी है, या हमारे अंदर जो मायावादी टेंट्स है ज्ञान की, उसके द्वारा हमारे ऊपर वाले भक्तों को हम भूल ही जाते हैं। बस मैं और गुरु को भी आगे लांग के चला जाऊंगा, फिर कृष्ण के साथ ही बस। तो ये मायावादी विचार है। तो हमारे मन में आते हैं ऐसे विचार कि भक्तों की जरूरत नहीं है, बहुत झंझट करते हैं, बस डायरेक्टली गुरु महाराज और मैं, बीच में कोई नहीं। तो ये विचार अच्छा नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं सेवक के द्वारा फिर नित्यानंद प्रभु कृपा कटाक्ष करेंगे रघुनाथ के ऊपर। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोर करीमु दंडन। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने ये सुना सेवक से, बोले अरे चोर, तुम यहाँ से दूर से मेरे दर्शन ले रहे हो, आओ आओ आज तुम्हें दंडित करता हूँ मैं। ये नित्यानंद प्रभु की लीला है। नित्यानंद प्रभु अवधूत है, उनके क्रियाकलापों को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए गुरु की कृपा होगी तब नित्यानंद प्रभु को समझ सकते हैं हम। प्रभु बोलाए ते हो निकटे ना करेगा मन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास नहीं गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको जबरदस्ती से पकड़ के लाया और उनके सर पे अपने चरण कमल रख दिए। ये नित्यानंद प्रभु की महानता है ना। तो अपनी कृपा जोर जबरदस्ती दे देते हैं।
तो इसलिए हमें नित्याम प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे वृंदावन दास ठाकुर तो नित्याम प्रभु का इतना गुणगान करते रहते हैं चैतन्य भागवत में। ये गुणगान करते करते करीबन 35 लीलाएं है पूरे चैतन्य भागवत में नित्याम प्रभु से संबंधित। ये करते 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 चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद ये चैतन्य भागवत इतना बड़ा ग्रंथ हो गया कि वो सोच में पड़ गए कि अभी क्या करूं, इतना बड़ा ग्रंथ बन गया है। तो फिर उन्होंने वहीं पे वो छोड़ दिया। और इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये मौका प्राप्त हुआ कि महाप्रभु की अंत्य लीला संन्यास की बाद वाली बहुत विस्तार से वर्णन करने के लिए। ये भगवान की ही लीला है वास्तविकता, लेकिन नित्याम प्रभु के जो प्रेम है नित्याम प्रभु के प्रति वृंदावन दास ठाकुर का वो बहुत ही सराहनीय है। वो बोलते हैं अगर नित्याम प्रभु के प्रति कोई अपराध करता है, द्वेष करता है, तो मैं अपने लात से उसके सर पे लात मारता हूँ, अपने पाँव से उसको लात मारता हूँ। तो कोई बोलेगा अरे ये कैसे आचार्य भाई लात मार रहे सर के ऊपर, क्या कोई कराटे चैंपियन है क्या? बिना कराटे के क्यों कर रही है ऐसे? तो हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि ये उनकी दया है। क्या ऐसे अधम व्यक्ति को जो नित्याम प्रभु का द्वेष करता है उसको भगवान की कृपा कभी मिलेगी नहीं, लेकिन महान आचार्य श्री वृंदावन दास ठाकुर जब उसके सर पे लात मारेंगे तो उनके चरणों की धूली उसके सर में लग जाएगी, उस पापी के अधम के, और फिर उसका उद्धार हो जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये वृंदावन दास ठाकुर की विशेषता है कि वो लात मार के कृपा देते। मार खे प्रेम दे, मार खाकर नित्याम प्रभु प्रेम देते हैं, तो वैसे हमारे आचार्य भी लात मारकर भी कृपा प्रेम देते हैं। तो किसी के ना किसी तरह से कृपा आती रहती है। कृपा समझने के लिए भी थोड़ा बुद्धि और अधिक कृपा की जरूरत होती है, नहीं तो कृपा समझना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय रघुनाथे कहे किछु हैया सदय। तो नित्यानंद प्रभु तो कृपा अपने स्वभाव से ही बहुत कृपालु है और थोड़े हास्य विनोद में लगे रहते हैं। तो इसलिए कृपावश उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, निकटे न आई सचोरा भाग दूरे दूरे आजी लाग पाया छी दंडी मुंह तो मारे। अरे तुम पास में नहीं आते हैं चोर और दूर दूर भागते हो, तो आज मैं तुम्हें दंडित कर रहा हूँ। दधी चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। तो दंड क्या है? आपको चिड़ा और दही खिलाना है मेरे सभी संगी गणियों को। संगी गण बहुत है ना, तो उनको खिलाना है। सुनी आनंदित हैल रघुनाथ में, रघुनाथ आनंदित हो गए। तो हमें भी पता होना चाहिए कि गुरु हमें सेवा में कैसे लगाते हैं, भक्तों की सेवा करवा कर। तो आनंद के या प्रेम के जो लक्षण हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भेंट भेंट देना भक्तों को प्रेम से, उन्होंने दिए हुए भेंट को स्वीकार करना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, भक्तों के द्वारा दिया हुआ प्रसाद स्वीकार करना, और अपना मन उनको बताना कि मन में हमें कैसे भक्ति में जो प्रगति करने के लिए जो उत्साह है वो बताना, और जो बाधा है वो भी हल करने के लिए उनको पूछना। तो इस तरह से प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ हमारा कैसे संबंध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान के साथ जो संबंध है वो गुरु के साथ संबंध से प्रतीत होता है, और गुरु के साथ जो हमारे संबंध है भक्तों के साथ संबंध से प्रतीत होता है कि कितना हम असलियत में संबंध है। जिनका भक्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं है वो हरि नाम में अच्छे से रुचि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो हम जो कनेक्शन जो बता रहे हैं हम तीनों का, भगवान के पास गुरु के द्वारा, गुरु के पास भक्तों के द्वारा, तो भक्तों के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी। भगवान से तो हमने डाइवोर्स ले ही लिया, हम सब डाइवोर्सिस है। भगवान के साथ रह रहे थे वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, वहाँ फिर छोड़ के आ गए। डाइवोर्स पत्र तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो शरीर है वही वो पत्र है जो दिखाता है कि हम सब डाइवोर्सिस है। तो यहाँ भगवान के साथ पुनर्रिश्ता स्थापित कर रहे हैं हम, तो भक्तों के साथ संबंध स्थापित करके। तो फिर भक्तों को प्रसन्न करना है हमें, जितना जी जान लगाकर भक्तों के लिए सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा नामे रुचि वैष्णव सेवा जीव दया, यही हमारे पूरा जो प्रैक्टिस जो है हमारा पूरा भक्ति में, इसका 3 ही निष्कर्ष निकलता है। ये 3 चीज़ें ही करना है अंततोगत। जो भी आप कर रहे हैं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या ये पुजारी पूजा कर रहे हैं, ये 3 ही चीज़ें होनी है अंततोगत। नाम के प्रति रुचि, वैष्णव के प्रति सेवा, और जीवों के प्रति दया। कभी भी नाम सुने कहीं भी तुरंत रुचि प्राप्त होनी चाहिए। वैष्णव कभी भी देखे तो तुरंत सेवा का विचार आना चाहिए। कोई भी जीव देखे जिसके जो वैष्णव नहीं है, उसको गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हुई, कुछ भक्ति वगैरह नहीं कर रहा है, माया में जा रहा है घसीटते हुए,
तो उसके ऊपर तुरंत दया करनी चाहिए, उसको प्रसाद देना चाहिए, उसको प्रभुपाद किताब देनी चाहिए, हरिनाम देना चाहिए, मंदिर का स्टिकर कार्ड कुछ तो देना चाहिए, जिससे कि उसको हरिनाम देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो रघुनाथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और समझ गए कि अभी नित्याम प्रभु की कृपा मिलेगी मिलेगी भक्तों के द्वारा, मिली गई आशीर्वाद कृपा, ये संदेश के द्वारा, उपदेश के द्वारा। से क्षणे निज लोक पाठाईला ग्रामे, भक्ष द्रव्य लोक सब ग्राम हईते आने। तो तुरंत उन्होंने अपने जो संगीगण थे रघुनाथ दास गोस्वामी के, उनके सेवक वगैरह, उनको भेज दिया गांव में, और फिर अलग अलग प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने को बताया। चीड़ा दही दुग्ध संदेश आरची निकला, सब द्रव्यानाया चौदी के धरिला। तो उन्होंने चीड़ा लाया, चीड़ा चिप्ड राइस, हम ये भी देख सकते हैं चिप्ड राइस। आप में से कितने जनों ने बचपन में खाया है चिप्ड राइस, दूध में मिला के वगैरह, जो भी बंगाल से तो उन्होंने ये भी खाया होगा, चीड़ा दही चीड़ा दूध वगैरह। तो मुझे भी याद है, मैं भी ऐसे बचपन में करता था, याद नहीं, माँ रखती थी उसको भिगोने के लिए पानी में या दूध में जो भी था, और फिर बाद में बड़े चाव से हम खाते थे। तो हम सब ने वो खाया है, चिड़ा दूध या चिड़ा दही जो भी, उसके बारे में कौन चर्चा करता है, उसका क्या ना, हम भी शायद भूल गए, शायद हमें भी अभी लाभ नहीं हो रहा उसके द्वारा। लेकिन ये बहुत विशेष है, देख सकते कितना 500 साल पूर्व हुआ है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की कृपा आ रही है एक भक्त के जीवन में, भक्तों की सेवा कर कर, इसलिए इसका गुणगान सदियों के लिए, शाश्वत काल के लिए चलता ही रहेगा। तो क्या चीज़ है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन वो किस कारण, किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई, वो महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ नित्यामृत दे रहे हैं, ऊपरी रूप से तो बहुत ही सीधी सी चीज़ है, अर्थात इन्होंने बहुत सारे रईस थे, इन्होंने बहुत सारे उसमें जैसे संदेश है, चीनी कला, ये बहुत कुछ अन्य चीज़ें भी दी, स्वादिष्ट पदार्थ, लेकिन नित्यामृत की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कैसे उसको स्वीकार की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आसी ते लागिल लोक असंख्य गणन। जैसे ही सुनते हैं कि महोत्सव है, तो भी सब आ गए, ब्राह्मण सज्जन असंख्य लोग उधर आ गए। आर ग्रामांतर हईते सामग्री आनिल, शतदुई चारी होल न तहा आनाइल। तो फिर और अलग अलग जगहों पे भेजा गया, उन्होंने सेवकों को भेजा और सारे अन्य खाद्य पदार्थ लाने के लिए। और फिर उन्होंने 200-400 लोगों को प्राप्त हो उतना ऐसे लार्ज, ये 400 उन्होंने अर्दन पॉट्स, मिट्टी के घड़े लाए। बड़ा बड़ा मृत कुंडिका आनाइल 5 साते, एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भिजाय ताते। तो बड़े बड़े मिट्टी के ऐसे घड़े थे जो 5 या 7 थे करीबन, और उनमें एक विप्र ने, ब्राह्मण ने चीड़ा भिगाने के लिए डाल दिया। एक अठाई तप्त दुग्धे चीड़ा भिगाइया। दूसरे जगह पे उन्होंने एक जो गर्म दूध में चीड़े को, यानी ये पोहे को डाल दिया भिगोने के लिए। अर्धे का छानीला दधी चीनी का ला दिया। और फिर आधा जो राइस था, देन हाफ द राइस वाज मिक्स्ड विथ योगर्ट शुगर एंड बनानास। तो आधा जो राइस था तो उसके साथ ये योगर्ट, दही, फिर चीनी और बनानास यानी केले उसमें मिलाए गए। आर अर्धे का घनावृत दुग्धे ते छानीला, चंपाकला चीनी घृत कर्पूरता ते दिला। और अदर हाफ वाज मिक्स्ड विथ कंडेंस मिल्क। दूसरा जो बचा हुआ राइस था उसके में कंडेंस मिल्क, रबड़ी जैसे मिला दिया। एंड स्पेशल टाइप ऑफ बनाना नोन एज चंपा कला। कितने जनों को पता है चंपा कला? आपको पता होगा, इधर बंगाल का ही है। हाँ, तो ये विशेष प्रकार का केला है, तो उसमें डाल दिया। और देन शुगर, क्लैरिफाइड बटर एंड कैम्फर। फिर उसमें चीनी, घी और कैम्फर, कर्पूर डाल दिया। धूती परी प्रभु यदि पिंडा ते वसीला, सात कुंडी विप्रतारे तार आगे ते धरीला। तो नित्यानंद प्रभु उन्होंने अपने कपड़े बदले और नए कपड़ों के साथ वो एक ऊपर आसन में स्थित हो गए, और एक ब्राह्मण ने उनके सामने ये 7 घड़े लाए। चबूतरा ऊपर यता प्रभुर निज गणे, बड़ बड़ लोक वसीला मंडली रचने। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्तर के ऊपर जो बैठे थे नित्यानंद प्रभु, all the most important associates of नित्यानंद प्रभु as well as other important men sat down in a circle around the Lord। बहुत ही महत्वपूर्ण उनके संगीगण वो आजू बाजू में उनके बैठ गए एक सर्कल में। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर, मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर, ये सब नित्यानंद प्रभु के संगी है। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास, महेश गौरी दास, होड़ कृष्ण दास,
ये भी अन्य संगीगण। उद्धारण दत्तादि यत निजगण ऊपरे वसीला सब के कोरे गणन। और फिर उद्धारण दत्ता और बाकी सब निजगण बैठ गए। वो कहते हैं कितने असंख्य है वो, उनकी कैसे मैं गणना कर सकता हूँ, ये मुश्किल ही है। शुनि पंडित भट्टाचार्य यत विप्र आइला मान्य करी प्रभु सबारे ऊपरे वसाइला। और फिर ये जो ब्राह्मण वगैरह थे, प्रिस वगैरह पुजारी वहाँ के, ब्राह्मण प्रिस्ट वेंट देयर, वो भी आ गए वहाँ। नित्यानंद प्रभु उनको आदर किए। मेट देम सिट ऑन द रेज प्लेटफॉर्म विथ हिम, उनको अपने साथ ही उस प्लेटफॉर्म पे बिठा दिए। दुई दुई मृत कुंडिका सबारा आगे दिला एके दुग्ध चिड़ा रे दुधी दही दधी चिड़ा कैला। एवरीवन वाज ऑफर्ड 2 earthen pots, हर किसी को 2 मिट्टी के घड़े दिए गए। इन वन वाज पुट चिप्ड राइस विथ कंडेंस्ड मिल्क, एक में पोहा, क्या कहते हैं आप हिंदी में, चिप्ड राइस पोहा ना, चिड़ा, ओके चिड़ा, तो चिड़ा को कंडेंस मिल्क के साथ, रबड़ी के साथ, एंड इन अदर चिप्ड राइस विथ योगर्ट, दूसरे को चिड़ा दूध और चिड़ा दही, सबको 2 2 मिल गए। आरयत लोक सब चौतरा चौतरा पला तलाने मंडली बंधे वसीला तारना होय गणने। ऑल द अदर पीपल सैट इन ग्रुप्स अराउंड द प्लेटफॉर्म, बाकी सब बैठ गए आजू बाजू में। नो वन कुड काउंट हाउ मेनी पीपल देयर वेर, गणना ही नहीं कितने गण थे। एक एक जना रे दुई दुई होल ना दिला, हर किसी को 2 घड़े। दधी चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भिजाइल, तो उसमें चिड़ा दही और चिड़ा दूध। कोन विप्र ऊपरे स्थान ना पाया, किसी को ऊपर स्थान नहीं मिला। दुई होल अनाए चिड़ा भिजाए गंगा तीरे गया, तो फिर वो 2 घड़े पकड़कर वो गंगा के तीरे चले गए, गंगा तीरा पे। तीरे स्थान न पाया कत जन, अभी इतना भीड़ हो गया वो गंगा तीरे भी, तो उनको स्थान नहीं मिल रहा है अन्य लोगों को। जले नामी दधी चिड़ा खरहे भक्षण, तो वो उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, पानी के अंदर। सोचिए कितना विशेष है, खा रहे लेकिन पानी के अंदर, यानी थोड़ा आधा डूबे हुए उसमें हुए। तो ये बहुत ही विशेष है। सेवा भक्त प्रसाद किसी भी स्थिति में प्राप्त करेंगे। भगवान जो कृष्ण प्रसाद के रूप में आते हैं, और मेरे बीच में इस संसार की कोई चीज नहीं आ सकती, जो आएगी उसका नामो निशान मिटा दूंगा। तो ये भक्तों का दृढ़ निश्चय होता है, तो इसलिए उनको प्रसाद प्राप्त होता ही होता है। तो ये देखिए उनको कुछ समस्या नहीं है, बैठ गए पानी के अंदर, गंगा के अंदर। तो 2 हो रहा है उनके साथ, गंगा भी शुद्ध कर रही है और प्रसाद भी शुद्ध कर रहे हैं। गंगा बाहर से और प्रसाद अंदर से। तीरे स्थान न पाया कत जन जले नामी दधी चिड़ा करे भक्षण। केह ऊपरे केह तले केह गंगा तीरे विष जन 3 ठाई परिवेशन करे। तो करीबन 20 जन, 20-30 जन वो सब सर्विंग कर रहे थे। 20 men who distributed the food। हे नकाले आइला तथा राघव पंडित, फिर आगे वर्णन आता है कि राघव पंडित वहाँ आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु को ये निवेदन किया था कि मेरे घर में प्रसाद पाइए। वो और उनकी बहन दमयंती बहुत ही प्रसिद्ध थे महाप्रभु को अच्छे से खाद्य पदार्थ खिलाने के लिए, उसका भी वर्णन आता है अन्य जगह पे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आएंगे, लेकिन शाम को आएंगे आपके पास, अभी तो हम यही अपने संगियों के साथ प्रसाद स्वीकार करना चाहेंगे, ये जो हमारे रघुनाथ दास ने दिया है। फिर आगे वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बुलाते हैं। सकल लोके रचिड़ा पूर्ण जबे हईल ध्याने तबे प्रभु महाप्रभुर आनिल। जब सब लोगों को ये चिड़ा प्राप्त हो गया, सबको दिया गया, शुरुआत नहीं किया उन्होंने एक तरीके से, तब नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ध्यान किया। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, जैसे ही महाप्रभु आ गए, अर्थात ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उनके जैसे भाव स्वरूप में जो नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं और कुछ संगीगण देख पाए, तो तुरंत नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए कि महाप्रभु आ गए। तारे लैया सबार चिड़ा देखी ते लागिला, और फिर उनको लेके नित्यानंद प्रभु ने उनको ये सब चिड़ा दही दिखाया और खिला भी रहे। सकल कुंडी होलनार चिड़ार एक ग्रास, हर किसी के कुंडी से, वो घड़े से वो एक एक घास कहते हैं मॉर्सल, वो लेकर महाप्रभु को खिला रहे नित्यानंद प्रभु। देखिए कितना प्रेम है गौर निताय में, नित्यानंद प्रभु खुद उनको खिला रहे। महाप्रभु र मुखे देना करी परिहास, और वो हास्य विनोद भी कर रहे साथ ही साथ। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही शांत नहीं है, बहुत ही जोवियल है। हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लैया तार मुखे दिया खाओ या हासिया हासिया। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भी हंसते हुए उन्होंने भी एक घास लिया और फिर नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया, और वो भी हंस रहे थे और दोनों ले रहे थे।
यही मत निताई बोले सकल मंडले दांडाइया रंग देखे वैष्णव सकले. In this way, Lord Nityananda was walking through all the groups of eaters and all the Vaishnavas standing there were seeing the fun. नित्यानंद प्रभु चलते गए हर एक की कुंडी से चैतन्य महाप्रभु को खिलाते गए, चैतन्य महाप्रभु उनको खिलाते गए और ये भक्त सब देख रहे थे कि क्या हास्य विनोद हो रहा है. की कराए बेड़ा यहाँ केह नाही जाने महाप्रभुर दर्शन पाय कौन भाग्यवाने. ये नित्यानंद प्रभु कर क्या रहे भक्तों को समझ में नहीं आ रहा. सच्ची अभी आगे अगर मैं ऐसे अभी करूँ इधर आपको अगर कोई दिख नहीं रहा है उधर अभी है नहीं कोई तो है वैसे भगवान सब जगह पे लेकिन तो और मेरी में उतनी भक्ति नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु बुलाकर खिलाइए तो नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं. लेकिन आप बोलेंगे इनको क्या हो गया ऐसे क्या हवा में किसको खिला रहे. तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया लेकिन महाप्रभु के जिनको दर्शन मिल रहे थे जिन कुछ उच्च स्तर के भक्तों को उनको समझ में आ रहा था. तबे हासी नित्यानंद वसीला आसने चारी कुंडी आरोया छीड़ा राखीला डाहिने. फिर वो बैठ गए वो पिंड स्थान वो जो स्थान है वट वृक्ष के नीचे और फिर उनके बाजू में ये सब चीजें रखी गई. आसन दिया महाप्रभु रे ताहा वसाइला. उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी आसन दिया. चैतन्य महाप्रभु उनके बाजू में बैठ गए. दुई भाई तबे चिड़ा खाई तेला गिला. और दोनों चिड़ा दही भक्षण करने लग गए. तो ये जैसे कृष्ण बलराम करते थे वृंदावन में यमुना किनारे पुलिन भोजन यमुना के तट पे. तो वही लीला चल रही है चैतन्य और नित्यानंद की इस कलयुग के अंतर्गत. और एक दूसरे को खिला रहे. वहां भी वो खिलाते थे ग्वाल बाल भी खिलाते थे कृष्ण को. कृष्ण खिलाते थे उनको. कितनी सारी मधुर लीलाएं हैं. तो वही लीलाओं का पान कर रहे हैं भगवान गौर निताय. देखिए नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला कत कत भावावेश प्रकाश करेला. नित्यानंद प्रभु बहुत ही आनंदित थे और अलग अलग भाव को प्रकट कर रहे थे. आज्ञा दिला हरि बोली करह भोजन हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवन. नित्यानंद प्रभु ने ऑर्डर दिया कि अभी आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए और साथ में क्या करना है हरि हरि भी बोलना है. तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीवा के दो फंक्शंस हैं कार्य हैं. एक तो बोलना नहीं तो चखना. तो अभी चखते समय कैसे हरि हरि बोलेंगे लेकिन जैसे लेना है ना हरि हरि या माधव मुकुंद मुरारी ऐसे करना चाहिए. वदने कवळ घेता नाम घ्यावे श्री हरिचे. हमारे एक महाराष्ट्र के शायद तुकाराम महाराज कहते हैं कि हर घास के साथ मॉर्सल के साथ भगवान हरि का नाम लेना चाहिए. वही क्योंकि तुकाराम महाराज कौन है ये तो चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य हैं जैसे प्रभुपाद ने बताया है. और तुकाराम महाराज भी अपने श्लोक में कहते हैं कि मेरा जो दीक्षा हुआ है राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र हा दिला राम कृष्ण हरि. तो वही पद्धति में हमारा बचपन से ही मैं वारकरी संप्रदाय में मेरा जन्म हुआ था. तो बचपन से ही विट्ठल भक्ति हरि भक्ति का हमें कृपा प्राप्त हुआ था. तो सबको साथ में हरि हरि भी बोलना है. हरि हरि बोली वैष्णव करे भोजन पुली न भोजन सबार होइल स्मरण. सब हरि हरि बोल रहे हैं और भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं. सभी को पुली न भोजन जो यमुना तीरे हुआ था कृष्ण बलराम का उसकी याद आई. नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार रघुनाथेर भाग्य एत कैला अंगीकार. तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु. तो इसलिए रघुनाथ के सौभाग्य को उन्होंने ये सब स्वीकार किया. भगवान ऐसे ही स्वीकार नहीं करेंगे. उनका भी कृपा वो गुण है उसके कारण हमारे दिए गए प्रसाद को वगैरह भोग को अर्पण स्वीकार करते हैं. ऐसे नहीं करते. इसलिए हम में उतना भक्ति नहीं है इसलिए हम गुरु महाराज को प्रदान करते हैं और गुरु महाराज प्रभुपाद को आप ही प्रभुपाद ऐसे करते हैं. वो भोग जाता है ऊपर. फिर राधा रानी जो भी उसमें कुछ है थोड़ा बहुत कमी वो अंततः मिटा के फिर भगवान को एकदम बढ़िया ऐसा भोग खिलाती है. फिर कृष्ण उसको लेते हैं. फिर राधा रानी वगैरह राधिका आदि सखी गण अवशेष पाए जो भोगारती में शिल भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं. और फिर वो प्रसाद होते 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 प्रभुपाद के द्वारा गुरु महाराज के द्वारा फिर हमें प्रसाद प्राप्त होता है. तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा रही हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कि उन्होंने वो स्वीकार किया उनके दिए हुए भोग को. श्री रामदासादि गोप प्रेमाविष्ट हैया. एक मिनट. नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौन जौन. नित्यानंद प्रभु के प्रभाव कृपा कौन जान सकता है. महाप्रभु आनी कराए पुली न भोजन. वो महाप्रभु को ला पाए वहाँ. श्री रामदासादि गोप प्रेमाविष्ट हैया गंगा तीरे यमुना पुली न ज्ञान कैला. रामदास आदि भक्तों को प्रेम
अविष्ट होकर उनको यमुना तीरे पुलिन भोजन की याद आई। महोत्सव शूनी पसारी नाना ग्राम हैते, चिड़ा दही संदेश कला अनिले वेचिते। तो महोत्सव हो रहा है ये सुनकर बड़े दुकानदार सब आ गए, वो अपना कमाई करने के लिए वो सब वहाँ आ गए अपने अपने खाद्य सामग्री को लाकर वहाँ। यत द्रव्य लैया आई से सब मूल्य कोरी, जो भी जितना कुछ लाया गया रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ खरीद लिया। पैसे की तो कमी नहीं थी। हमारे पैसे के इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा लगा दिया, जो भी पैसा था। सोचने का नहीं कि क्या होगा, क्या कहते हो, बूंदी हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाऊंगा, सोचने का नहीं, भगवान कर देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम। आपकी इतनी तीव्र इच्छा है भक्तों की सेवा करने की, तो भगवान धन या जो भी सामग्री है वो सब कुछ भेज देंगे। तार द्रव्य मूल्य दिया, तहारे तहारे खाओ या, उनसे खरीद कर, पैसे देकर खरीद लिया और फिर उनको ही मुफ्त में खिला दिया। देखिए कौन, हम हमारे ऐसी बुद्धि नहीं चलेगी। हम बोलेंगे अरे तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, तुमने तो पैसा लिया था मुझसे। नहीं, जब कृपा चाहिए तो इस तरह से थोड़ा पागल होना चाहिए, थोड़ा बुद्धि थोड़ा बंद होना चाहिए। तो ऐसे किया उन्होंने। कौतुक देखिते आइल यत यत जन, से ही चिड़ा दही कला कोरिला भक्षण। कौतुक देखने के लिए जो भी कोई आए उनको सबको चिड़ा दही कला केले वगैरह सब मिल गए। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, भोजन करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ पाँव वगैरह धोए। चारी कुंडीर अवशेष रघुनाथे दिला, और ये 4 घटों में नित्यानंद प्रभु के 2 और चैतन्य महाप्रभु के 2, वो उन्होंने उनको अर्पण किया रघुनाथ दास गोस्वामी को। आरती न कुंडिकाय अवशेष छिला, ग्रासे ग्रासे कोरिला विप्र सब भक्ति दिल। देर वॉज फूड रिमेनिंग इन द 3 other big pots of Lord Nityananda, and a Brahman distributed it to all the devotees, giving a morsel to each. और भी 3 बड़े घड़े थे, तो उसमें बचा हुआ एक ब्राह्मण ने सभी भक्तों को दे दिए एक एक मोर्सल। पुष्पमाला विप्राणी प्रभु गले दिला, वो ब्राह्मण ने एक पुष्पमाला नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी। चंदन आनी प्रभुर सर्वांगे लय पीला, उनके शरीर पे चंदन लगा दिया। सेवक तांबुल लैया करे समर्पण, उनको नित्यानंद प्रभु को तांबुल खिलाया गया। हंसिया प्रभु करये चरवण, हंसते हंसते नित्यानंद प्रभु ने उसको चरवण किया। माला चंदन तांबुल शेष ये अचिल, श्री हस्ते प्रभु ताहा सभाकारे वांटी दिल। इसके अलावा जो भी कुछ था नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को बांट दिया। आनंदित रघुनाथ प्रभु शेष पाइया, अपनार गण सह खाइला बाटिया। आनंदित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु के सब अवशेष प्राप्त किए और अपने संगियों में भी बांट दिए। यही तो कहिलो नित्यानंदेर विहार, चिड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति यार। इस तरह से मैंने नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को वर्णन किया है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और ये महोत्सव को चिड़ा दही महोत्सव के नाम से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे वो कहते हैं। तो यहाँ ये संक्षिप्त में जो लीला हुई, इसके अलावा बहुत कुछ है जो इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। फिर शाम को नित्यानंद प्रभु जाते हैं राघव पंडित के घर में, और फिर वहाँ उनके अवशेष राघव पंडित इनको रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान करते हैं। बाद में एकांत में वो रघुनाथ दास ये जो है रघुनाथ, ये राघव पंडित से मिलके उनके पास धन प्रदान करते हैं, बहुत सारे सुवर्ण के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु और उनके संगियों को आप बाद में देना, अभी देंगे शायद स्वीकार न करेंगे, आप बाद में दे देना। तब तक रघुनाथ दास तो चले गए होंगे और फिर उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म है क्या, ऐसे लगता है कि अरे साधुओं को बुलाना, एक तो वो तो कुछ कामकाज करते ही नहीं, ऐसे ही भटकते हैं, अर्थात प्रचार करते हैं, तो उनको बुलाओ, पत्नी को लगा दो सब बनाने में, कुकिंग करने में, इनका पैसा गया कमाने में, पसीना गया कुकिंग में वो माता जी का, और सब बना के भगवान को अर्पण करो और ये साधुओं को पहले खिलाओ, वो आके आराम से बैठ के खाएंगे उसको, और एंड में जाके उनको दक्षिणा भी देना है। दक्षिणा किसने किसको देना चाहिए, इन्होंने खाया मुफ्त में साधुओं ने, तो साधुओं ने दक्षिणा देना चाहिए ना। लेकिन क्योंकि वो साधु लगे हैं भगवान की सेवा में पूरी तरह से, तो इसलिए साधुओं को ही दक्षिणा देना, यह गृहस्थ धर्म है। खिलाना भी है और उनको कुछ डोनेशन भी देना है, क्योंकि ये आशा है कि वो साधु भगवान की सेवा में लगाएंगे उसको, न तो अपने लिए कुछ स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं गौर मोहन डे रोज अपने घर में कम से कम 4 साधु को लाते थे प्रभुपाद के पिताजी, और सबको अच्छा सा खिला के वगैरह बाद में कहते थे हाथ धोने के बाद, कृपया मेरे अभय चरण को आशीर्वाद दीजिए, या आगे जाके
भगवान और श्रीमती राधा रानी का बड़ा महान भक्त बने। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कृपया आशीर्वाद दीजिए मेरा बच्चा बड़ा इंजीनियर बने, हाँ, करे MS इन US या M.Tech B.Tech, ऐसे नहीं। आजकल के बहुत सारे गृहस्थ भी जो रहते हैं इस्कॉन के अंतर्गत, उनकी इच्छा होती है मेरा बेटा जाए US में MS करने के लिए, फिर B.Tech करे, M.Tech करे, PhD पोस्ट डॉक वगैरह, ऐसी सब इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। वो तो हो जाएगा, वो तो ऐसा ऐसा ही हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा बच्चा भगवान का भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, ये इच्छा करनी चाहिए पति पत्नी ने, गृहस्थों ने। फिर वो अच्छा भक्त बन सकता है, नहीं तो फिर वो अच्छा इंजीनियर ही बनेगा और भक्ति नहीं करेगा। तो ये गृहस्थ धर्म है। फिर बाद में जब वो घर आए तो उनको कुछ दिलचस्पी नहीं थी, वो दुर्गा मंडप में ही सोते थे, जो बाहर जो है मंडप उसमें ही सो जाते थे। और फिर सोच रहे थे यहाँ से कैसे भागे। तो भगवान की कृपा से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था, वो तो रह गया थोड़ा शायद, बाद में नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था, वो भी महत्वपूर्ण है। शुनि हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख समय। कि ये नित्यानंद प्रभु हंस के बोल रहे सभी भक्तों को, अरे देखो ये जो रघुनाथ है इसको विषय सुख भाता ही नहीं, इतना विषय सुख है इसके पास इंद्र के समान, इसको बिल्कुल भाता नहीं। चैतन्य कृपा ते से ना ही भाय मने, कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है उनको, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही लेकिन मिली है। सबे आशीर्वाद कर पाऊ का चैतन्य चरण, आप सब आशीर्वाद दीजिए जिसके द्वारा ये चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर पाए। तो देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा भी भक्तों के द्वारा आ रही है, भक्तों को निवेदन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। उनको क्या पड़ी है, वो तो भगवान ही साक्षात बलराम जी हैं, हाँ, तो दे सकते हैं ऐसे ही कृपा। लेकिन हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे कृपा प्राप्त होती है। हाँ, वो भक्तों को निवेदन कर रहे हैं, भक्तों को आदेश दे रहे हैं, वो तो भगवान है। और आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाई। तो जिसको कृष्ण के चरण कमलों का जो गंध है प्राप्त हो गया, जिन लोगों को, यानी हम सब उस कैटेगरी में आने चाहिए, तो क्या उसका फल रहेगा, क्या उसका परिणाम दिखाई देगा? ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाई। हमें इस संसार का कोई भी सुख भाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी आपके पास धन आए, सौंदर्य आए, शक्ति आए, ज्ञान आए, जो भी कुछ आए, जो भौतिक उपलब्धियां हैं, फिर भी आपको उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, बिल्कुल तनिक भी उसमें मन नहीं जाएगा आपका। तो ये होना चाहिए हम सबके साथ। यानी दो पैरामीटर से भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो भक्तिमय चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी और भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति कम 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 होती जाएगी। तो हमें देखना चाहिए हमारी भौतिक आसक्ति कम हो रही है कि नहीं। क्या हम भौतिक चीज़ों के प्रति अधिक लालायित हो रहे, धन जन सुंदरी इनके प्रति, इन चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो हमारी प्रगति नहीं हो रही है, अधोगति हो रही है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नित्यानंद प्रभु खुद कह रहे हैं। और फिर वो श्लोक कोट करते हैं जो भरत महाराज के बारे में बताया गया है। यो दुस्तजान दार सुतान सुहृद राज्यम रुधि स्पृश जहो यूएव मलवत उत्तम श्लोक लालसह। जो भरत महाराज थे इतना विरक्त हो गए थे संसार से, जो भी उनका धन जन सुंदरी इतने बड़े राजमहल में रह रहे थे, वो सब ऐसे ही त्याग दिया जैसे एक व्यक्ति मल विसर्जन करने के बाद देखता भी नहीं पीछे। ऐसे सब कुछ त्याग कर जंगल चले गए भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो ये सब हमारा भी होना चाहिए, किसी भी भौतिक चीज के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, तो फिर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। नहीं तो हम इस्कॉन में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, मुझे पोस्ट चाहिए, मुझे पोजीशन, मेरे राइट्स। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तुलसी महारानी के सामने रोज हम क्या भीख मांग रहे कि सेवा का अधिकार दीजिए, नहीं कि सेवा अधि कार दे। सेवा का मराठी में उसको आदि यानी पहले, सेवा के पहले कार दे दो फिर सेवा करूंगा। लाइफ मेंबरशिप कलेक्शन कर ले जाना है ना, कार दे दो पहले, कार में बैठ के जाऊंगा, लाइफ मेंबर बना के लाऊंगा। सेवा के पहले फैसिलिटी नहीं मांगना। प्रभुपाद की कुछ फैसिलिटी नहीं थी, ऐसे ही चले गए मालवाहू जहाज के ऊपर। किसी ने किया है प्रवास मालवाहू जहाज के ऊपर? जहाज के ऊपर भी शायद नहीं किया होगा, बहुत मुश्किल जाता है। और प्रभुपाद 48 दिन उस उम्र में, इसको कहते हैं उच्च दर्जे का भक्त, अर्थात वो तो नित्य सिद्ध भक्त हैं, हमारे सबके उद्धार के लिए आए। तबे रघुनाथ प्रभु निकटे बोलाइया, तारा माथे पद धरी कहिते लागिला। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को पास में बुलाया नित्यानंद प्रभु ने, और उनके चरण, उनके सर पे अपने चरण कमल रख दिए।
तुम्ही ये करायला यही पुलिन भोजन तोमाय कृपा करी गौर कैला आगमन। तुमने ये जो पुलिन भोजन करवाया सभी भक्तों को, तो तुम्हारे कारण यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन, कृपा करके चैतन्य महाप्रभु ने चिड़ा दुग्ध भोजन किया। नृत्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण, और सब नृत्य वगैरह देखकर भक्तों का रात को उन्होंने ये डिनर भी प्राप्त किया। तोमा उद्धारिते गौर आईला आपने छुटील तोमार यत विघ्नाधि बंधने। क्योंकि तुम्हें उद्धार करने के लिए गौरांग महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए, तो जो भी कुछ विघ्न बंधन है तुम्हारे जीवन में वो सब से तुम मुक्त हो जाओगे। स्वरूपेर स्थाने तोमा करीबे समर्पणे। सब एडवांस में बता रहे क्या क्या होने वाला है। नित्याम प्रभु तो भगवान ही है। स्वरूप के पास आपको नित्याम प्रभु चैतन्य महाप्रभु अर्पण कर देंगे। अंतरंग भृत्य बोली राखी बे चरणे। अपने अंतरंग भक्त के रूप में अपने चरणों में ही रखेंगे आपको चैतन्य महाप्रभु। तो एक ही हमारे आचार्य है 6 गोस्वामियों में से, जिनको चैतन्य महाप्रभु का करीबन 16 साल के लिए आंखों देखा सत्संग प्राप्त हुआ। और इसके अलावा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कानों से सुना महाप्रभु की लीलाओं को भी अर्पण वो कर पाए। इसी कारण बाद में जाके महाप्रभु के जाने पश्चात, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जाने के पश्चात उनको पूरा संसार शून्यवत दिखाई देता था। तो जब वृंदावन में आए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जी नहीं सकता ऐसे महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बिना, तो इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर दूं गोवर्धन से छलांग लगाकर। लेकिन भक्तों को जो भी कार्य करने होते हैं भक्तों के, अन्य भक्तों के आशीर्वाद देने चाहिए। तो वो गए रूप सनातन के पास, बोले कि आशीर्वाद दीजिए। बोले किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। अरे ये भी कोई बात हुई, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बोले मुझे विरह सहन ही नहीं हो रहा है महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। बोले अरे आपके पास, आपके हृदय में तो पूरा खजाना भरा हुआ है गौर लीला का। आपने आंखों से देखा है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सुना है, तो ये हम सबको प्राप्त नहीं हुआ यहाँ वृंदावन में। हम तरस रहे थे, थोड़ा इधर उधर कभी कभार कुछ सुन लिया गौर लीला किसी भक्त जो आए जगन्नाथपुरी से, अन्यथा हमने तो न देखा कान आंख से कुछ भी, न तो कान से थोड़ा थोड़ा बहुत सुन लिया बस। तो आप ये गौर लीला मधुर रस पान हमें कराइए। फिर वो तय हो गया, रोज राधा कुंड के तट पे करीबन 3 घंटे के लिए दोपहर के समय 2 से 5 करीबन वो बैठते थे और वो लीला बताते थे, गौर लीला, रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं। और उसमें वक्ता श्रोताओं में जो एक विशेष व्यक्ति थे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए और वो नोट्स को ही हम श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में प्राप्त कर पाए नित्याम प्रभु की कृपा से। नित्याम प्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश दिया था कि जाओ वृंदावन, तुम्हें भक्ति के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उधर। तो हम देख सकते हैं कि कैसे है ना हमारे जीवन में भगवान की कृपा आती है गुरु और भक्तों के द्वारा, और हम अंतरंग भक्त ये बन पाए। निश्चिंत हयाह आपन भवन, निश्चिंत होके चले जाओ अपने घर। अच्छी रे निर्विघ्ने पाबे चैतन्य चरण, बहुत ही जल्द और बिना किसी बाधा के तुम चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करोगे। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला, सभी भक्तों के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलाया महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने। तासा 12 चरण रघुनाथ वंदिला, और रघुनाथ ने उनके चरणों को वंदन किया। हम देख सकते हैं हम भी भक्ति के नए दिन जो थे, नए नए कितने भक्तों के कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुए हमें। लेकिन सालों साल बीतने के बाद क्या हम उनको याद रखते हैं? क्या हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं? काफी बार भूल ही जाते हैं और दोष ही देखना शुरू कर देते हैं। ये दोष देखना ये माया का प्रभाव है, इसलिए दोष दिखेंगे। जिसका हृदय कृष्ण भावना भावेश हुआ है, भर गया है, उधर बाढ़ आई है, उसको दोष नहीं देखेंगे। कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण। एक महान गुण जो है कलयुग में, हालांकि दोषों का निधि है, सागर है, वो एक गुण ही दिखाई देगा। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, अगर भक्तों के संग में एक भक्त किसी अन्य भक्त का कुछ गलत कह रहे थे, अपराध करते थे, तो तुरंत रघुनाथ भट्ट कहते थे कि जस्ट द फैक्ट दैट ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा इज इनफ फॉर मी टू ओवरलुक ऑल द सीमिंग डिफेक्ट्स इन हिम। सीमिंग डिफेक्ट्स, नॉट इवन डिफेक्ट्स। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, इतना मेरे लिए काफी है ना। उसके जो भी कुछ थोड़ा बहुत कमियां आप लोग सोच रहे हैं, उसको ओवरलुक करने के लिए, उसको दुर्लक्षित करने के लिए। तो कभी भी भक्तों में उनका गुण देखना चाहिए। कभी भी भक्तों को देखते तो उसमें एक कौन सा एक गुण बहुत ज्यादा दिखाई देता है एक भक्त में। हर भक्त अलग अलग है, हर कोई जप कर रहा है, हर कोई 4 नियम इत्यादि कर रहा है, लेकिन एक गुण एक भक्त में बहुत ही
ऊंचे रूप से वो दिखाई देता है, तो उसको याद रखना चाहिए हमेशा। राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि पहले बार जब एक कोई भक्त मेरे सामने आता है दिन में, तो मैं उसका जो सबसे प्रधान गुण है उसको याद स्मरण होता है मुझे। एक हर किसी का एक विशेषता है, तो वो याद आना चाहिए। सब भक्त तारे तासभार चरण रघुनाथ बंदिला, प्रभु आज्ञा लैया वैष्णवेरा आज्ञा लैया, राघव सहित निवृत्ति युक्ति करीला। और फिर बाद में उन्होंने उन सब के लिए डोनेशन वगैरह दिया। और फिर यदुनंदन आचार्य, आप जानते हैं लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्डेड बता रहा हूँ कि यदुनंदन आचार्य ने के घर में उनके जो विग्रह थे उनकी सेवा का जो पुजारी नहीं कर रहा था सेवा, फिर उन्होंने आ रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी मिले और कहें कि मैं उसको समझाता हूँ, आप जाके निश्चिंत हो जाइए। फिर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ज़रूर उन्होंने वो सेवा की होगी, क्योंकि उसके बाद वो भाग गए, लेकिन बताया होगा उसको ब्राह्मण को, पुजारी को, अरे भाई थोड़ा करो, ऐसे दुर्लक्षित मत करो विग्रह है वगैरह, उसको बता के फिर रात में, क्योंकि सिपाही थोड़े शिथिल हो गए थे, सोचकर अरे वो तो जो गुरुदेव है यदुनंदन आचार्य के अनुसार विग्रहों की सेवा के लिए वो ब्राह्मण को मनाने गया है, तो सिपाही साथ में नहीं थे। ये मौके का फायदा उठाकर तुरंत रघुनाथ वहां से भाग के चले गए। तो यहाँ सुबह जब हुई और देखा कि कहाँ है रघुनाथ, बोले अरे वो तो यदुनंदन आचार्य ने भेजा था उनको, तो बोले गए, वो तो गए, भाग ही गए, तो रघुनाथ पलाइला, भाग गए वो रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर वो जंगल के रास्ते से भागते भागते भागते, लंबी कथा है, लेकिन फिर बाद में जाके चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरणों में वंदन करते हैं, और फिर वहाँ चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं, उनके साथ थोड़ा हास्य विनोद करते हैं कि आपके पिताजी और चाचा जी हालांकि वैष्णव है, लेकिन इतने ऊंचे दर्जे के वैष्णव नहीं है, मटेरियलिस्टिक डिवोटीज है। भौतिकवाद रखकर जो भक्ति कर रहा है उसको मटेरियलिस्टिक डिवोटी कहते हैं, भौतिकवाद नहीं होना चाहिए अंदर। तो वैसे है वो तो कीड़े में विष्ठा में पड़े हुए कीड़ों के समान है, जिसको वहां से बाहर भी निकाला जाए तो वो विष्ठा की तरह भी भागता है। ऐसे तुम्हारे पिताजी और चाचा जी है। और ऐसा थोड़ा हंसते विनोद करते हैं और कहते थे कि तुम ऐसे विष्ठा के इसमें से तुम बाहर लाए गए हो, नित्याम प्रभु की कृपा ही है उनके ऊपर, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। और फिर उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्गत रख देते हैं। इसी कारण रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम हो जाता है स्वरूपेर रघु, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे और भी कोई रघुनाथ दास थे, तो इसलिए इनको स्वरूपेर रघु करके। तो जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो भी उन्होंने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्गत रखा, जैसे शिक्षा गुरु। तो हमारे दीक्षा गुरु हमें किसी एक शिक्षा गुरु या कुछ शिक्षा गुरुओं के अंतर्गत रखेंगे। दीक्षा गुरुओं को संभव नहीं होगा हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, तो इसलिए किसी एक शिक्षा गुरु या कुछ शिक्षा गुरुओं के अंतर्गत हमें रखेंगे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु बन जाते हैं और उनसे वो बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को गोविंद को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि इनको थोड़ा कृपा दीजिए आप, और रोज 5 दिन के लिए उनको प्रसाद प्राप्त होता है महाप्रभु के अवशेष। लेकिन बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी सोचता है कि मैं भी वैरागी का जीवन है, तो फिर वो सिंह द्वार पे भिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि नहीं, यहाँ भी मेरा थोड़ा वेश्यावृत्ति हो रहा है कि ये अमीर, इसने कल दिया था भिक्षा, आज भी देगा शायद, या इसने नहीं दिया था, तो ऐसे थोड़ा मन में कलुषित भाव हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने वो भी छोड़ दिया। फिर वो वहाँ जो बूथ था जहाँ अन्न छत्र था वहाँ से प्राप्त करते थे। बाद में उसको भी उन्होंने उचित नहीं समझा। रात में जब सब जो दुकानदार फेंक देते थे जो बचा कुचा है, जो सड़ा हुआ है, जिसको बेचा नहीं जा सकता माल, वो पदार्थ वगैरह, उसको फेंक देते थे एक दीवार के पीछे से। तो वहाँ रात को गायें वगैरह खाती थी, तेलंगा गायें, तो खाती थी, और जो ऐसा पदार्थ जो खाने में उनको भी अच्छा नहीं लगता था, चबाने के बाद उसको थूक देती थी, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी मध्य रात्रि में जाके लेते थे, पानी में धोते थे, थोड़ा नमक उसमें मिलाकर खाते थे। कितना वैराग्य, हम कोई सोच भी नहीं सकता। हम तो भक्तों का उच्छिष्ट भी ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जो उन्होंने थूक दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, ये तो गैयों ने फेंका हुआ, त्याग किया हुआ, ये रघुनाथ दास गोस्वामी लेते थे और रात में करते थे। हमारा ऐसा अगर थोड़ा बहुत कुछ वैराग्य होता, सबके सामने हम प्रदर्शन कर देते थे, और यूट्यूब वगैरह सब लगा दो ऊपर इंस्टाग्राम वगैरह सब लगा दो सब जगह पे, ना कि इतना वैरागी हूँ मैं। तो अपने वैराग्य का प्रदर्शन करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मध्य रात्रि में लेते थे। और ये सब घटनाएं पहले गोविंद से और बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी से महापुरुष सुनते रहते थे।
तो एक रात को महाप्रभु खुद आते थे, आए और कहे रघुनाथ क्या खा रहे हो तुम? बोले नहीं नहीं महाप्रभु ये उचित नहीं है, बहुत ही निम्न दर्जे का है वगैरह। जैसे हम देखते हैं सुदामा ने जो खिलाए थे पोहे, तो रुक्मिणी के द्वारा मनाने के बाद भी कृष्ण ने एक बार खाया और दूसरा खाने वाले थे तो रुक दिया, रुक्मिणी देवी ने कहा नहीं नहीं आप बाकियों की लगी। तो चैतन्य महाप्रभु भी हम देख सकते हैं जैसे वही भाव है, वही कृष्ण है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे देना है, लेना है थोड़ा, और फिर जोर जबरदस्ती थोड़ा लिया और लेते ही मुंह में डालते ही इतना आनंदित हुए, बोले ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ जीवन भर कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों बोल रहे हैं? क्या स्वाद है उसमें, उसको तो गैयों ने भी त्याग दिया। उसमें स्वाद रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य का है। इतना वैराग्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई नकल करने का प्रयास करेगा मर जाएगा, जीवित ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि कितना बाद में जाके तो इनका वैराग्य बढ़ता गया। वृंदावन में थे राधा कुंड के तट पे, तो 3 दिन में एक बार छाछ लेते थे, बस एक द्रोण, वो भी छोटा सा द्रोण। एक कृष्णदास करके था सेवक, उसने सोचा बहुत छोटा है, तो वो गया था सखी ग्राम सखी स्थली, तो वहां से उसने एक पलाश वृक्षों का बड़ा ये देखे पत्ते, तो उसका द्रोण बनाकर दास गोस्वामी को दे दिया। तो वो मुंह के पास लाकर पीने वाले थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि ये तो पलाश का द्रोण है, ऐसा तो पहले नहीं देखा था। बोले कृष्णदास ये एक पलाश का द्रोण कहाँ से मिला तुम्हें? बोले मैं सखी स्थली से लाया। ओ सखी स्थली, वो चंद्रावली का स्थान है। चंद्रावली से हमें कुछ लेना देना नहीं, वो राधा रानी की शत्रु है। फेंक दिया उन्होंने, तो वो गिर गया नीचे द्रोण, और छाछ वो पूरा, इतना ज्यादा छाछ था उसमें, बड़ा द्रोण था, सब मिट्टी में मिल गया। और अभी तो वो खाएंगी नहीं क्योंकि उनका मन ये हो गया, चंद्रावली सखी स्थली राधा रानी की शत्रु, हमें कुछ लेना देना नहीं, इस सवाल ही नहीं उठता। तो कृष्णदास अपने माथे पे पीट रहा था, कितनी बड़ी गलती कर दी, अभी तो ये खाएंगी भी नहीं। इतना इनका वैराग्य, बहुत ही अधिक वैराग्य। तो इसलिए उनको हम नकल नहीं कर सकते हैं, उनके आदेश प्राप्त कर भक्ति करनी चाहिए। और उनके जो रेगुलेशंस बताए गए रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लाइन्स ऑन स्टोन, जैसे कुएं में माताएं लोग पानी भरती है, तो वो कुएं का जो पैरापेट वॉल होता है उसका पत्थर के ऊपर घिसने के कारण रस्सी घिस कर बाद में बहुत समय के बाद देखते हैं कि वो पत्थर में एक लकीर बन जाती है। वन ग्रू कैन बी सीन ऑन दैट। इतना जो पत्थर इतना कड़क, इतना कठोर, और ये रस्सी इतनी पतली, लेकिन बहुत वही चीज करते रहने से वहां पे भी निशान लग जाता है। तो ऐसी हमारी भी भक्ति होनी चाहिए, बहुत ही तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, एक निष्ठता से वही कार्य करने। ऐसा कुछ वी शुड नॉट गेट अपसेट, वी शुड नॉट बिकम ये क्या कुछ नया चाहिए, ध्यान पूर्वक करेंगे श्रवण, तो फिर वही चीज़ें करने में बहुत आनंद आएगा। अगर ध्यान से नहीं कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे ठीक से, फिर कीर्तन करने में समस्या हो जाएगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे अपना जीवन पालन किए उन्होंने। और फिर इसके बारे में फलश्रुति देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यहाँ यही सुने पाए चैतन्य चरण। ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी का आख्यान है, इसको जो सुनता है वह चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त होता है। तो भक्तों ने जब देखा रघुनाथ दास गोस्वामी की इतनी कृपा प्राप्त हुई, किसी ने द्वेष नहीं किया। हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, इतना नम्र भाव होना चाहिए, दास का भाव, कि इसको कृपा प्राप्त हुई है मुझे नहीं है, तो मैं इस भक्त की सेवा करके वो जो उनको कृपा प्राप्त हुई उसको मैं भी प्राप्त करना चाहूँगा। तो ये भाव होना चाहिए हम सबका, न कि द्वेष करना। जब भौतिकवादी हमारी बुद्धि है तो हम द्वेष करते हैं भक्तों का, कि इसका कितना गुणगान हो रहा है, इसको ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर किधर जा रहा है, वो पोस्ट पोजीशन में जा रहा है। हम भौतिक लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। मेरे इंग्लिश लेक्चर में मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन गोल बिकम्स हेजी वन गोज क्रेजी। जब हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाता है तो वो जो साधक है वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस्कॉन में आया, मेरा प्रगति क्यों नहीं हो रहा है, मुझे दीक्षा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे पोस्ट पोजीशन क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे प्रिविलेजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब मूर्खता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको ये सब पोस्ट पोजीशन प्रिविलेजेस मिल जाएंगे और कृष्ण नहीं मिलेंगे। जैसे दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया, 4 स्कंद में हम देखते, करते ही क्या हुआ। श्रीमान कमल लोचन प्रभु रिसेंटली बोल रहे थे भागवतम में, एनवीसीसी में पुणे में, कि जैसे ही अपराध किया वो श्रृंखला होते ही तुरंत क्या हो गया,
उसको प्रजापतियों का प्रमुख बनाया ब्रह्मा जी ने स्वयं। तब तक एक प्रजापति था वो, लेकिन प्रजापतियों का लीडर बना दिया उसको ब्रह्मा जी ने। जैसे ही अपराध करेंगे आपका पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा। वो उनका कहना था। मैं एकदम दंग रह गया, माय गॉड, ये तो सोचा ही नहीं था। मैंने तो 3 बार भागवतम पढ़ा है, वो मेरे क्लिक नहीं हुआ कभी कि अरे हाँ सही में इसको जैसे ही अपराध किया इसका पोस्ट पोजीशन ऊपर चला गया, जिससे कि वो और अधिक अपराध करे। और किया भी उसने। अगली बार तो शिव जी को बुला ही नहीं। फिर समझाते हम क्या हुआ, सती ने दहा कर लिया अपना, और फिर उसका सर ही चला गया, बकरे का सर आ गया। तो इसलिए बहुत सावध रहना चाहिए कि पोस्ट पोजीशन बढ़ रहा है हमारा इस्कॉन के अंतर्गत, यानी आप शायद अपराध कर रहे हैं, संभावना अधिक है। मैं उनके वचन दोहरा रहा हूँ, यानी बता रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आवर गोल इज नॉट टू गेट सम पोस्ट पोजीशन, हमारा गोल है दासों के दास बनना। भौतिक प्रगति होती है कि ऊपर 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 जाना। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो नीचे ट्रेनी है, बहुत सारे हैं, फिर थोड़ा समय, थोड़ा जो भी, अभी मुझे पता नहीं क्या टर्म्स होते हैं, लेकिन थोड़ा एक प्रोजेक्ट के अंदर आ गए वो 5-6 लोग, थोड़ा ऊपर आ गया, नीचे भी कुछ लोग हैं, फिर वो ट्रेनर हो गया, प्रोजेक्ट गाइड हो गया, उसके अंदर 15-20 लोग हैं, फिर और ऊपर जाएगा शायद वन ऑफ द मैनेजर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिलो, मे बी विल बिकम एमडी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिलो। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ऐसे है, उसके ऊपर कम लोग और नीचे बहुत लोग बढ़ते जाएंगे। ये भौतिक प्रगति है। आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल उल्टी है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन जैसे कहते हैं। तो भक्ति में प्रगति यानी कितने अधिक मास्टर्स आपको प्राप्त हुए हैं। शुरुआत में मैं अकेला ही था, किसी की मानता नहीं था, फिर एक काउंसलर को वगैरह स्वीकार किया हो कि ठीक है प्रभु जी ठीक है प्रसाद देते हैं, फिर उनकी मानना शुरू कर दी। फिर भक्त संघ में आ गया, अभी 15-20 भक्त मेरे मालिक बन गए, स्वामी बन गए, उनकी सुनता हूँ। फिर बाद में मंदिर में ब्रह्मचारी हो गया तो सैकड़ों भक्त आ गए ना, फिर और प्रगति हुई तो हजारों भक्त, उनका मैं दास बन गया वगैरह। तो ऐसे भक्ति में प्रगति यानी आपके कितने स्वामी है, ये आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड है। भौतिक प्रगति के बिल्कुल विपरीत, उल्टा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर पोस्ट पोजीशन में ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, अभी मैं ये भी जो भी है प्रोजेक्ट लीडर या जो भी कुछ है, सर्विस डिपार्टमेंट हेड, मेरे नीचे बहुत लोग आ गए, बहुत प्रगति हो गई। हाँ हो गई प्रगति, आपकी भौतिक प्रगति हो रही है। आध्यात्मिक प्रगति यानी आपके कितने मास्टर्स आपके ऊपर है। आप अंदर से क्या सोचते हो, भगवान अंदर से देखते हैं। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। एक भक्त के अंदर से क्या वृत्ति, क्या भाव है, वो भगवान देखते, भाव को पकड़ते हैं। भावग्राही जनार्दन। भगवान ऊपर के हमारे सब जो पोस्ट पोजीशन कितना भी दिखावा क्यों ना करे, कितने में हजारों श्लोक रट लो, याद कर लो, या फिर कुछ भी कर लो, इससे भगवान तनिक भी आकर्षित नहीं होते। भगवान अंदर के भाव को पकड़ते हैं, भावग्राही है वो। इसलिए भाव दास का होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, मैं संन्यास नहीं, मैं बस कृष्ण के दासों का दास हूँ। कृष्ण जो गोपियों के भरता मेंटेनर है। तो ये भाव प्राप्त करना है हमें, रघुनाथ दास गोस्वामी से वो सीख प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बहुत विशेष दिन है, जिस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये न तो ऐसे महान आचार्यों को कृपा प्राप्त होते हैं हमें सेलिब्रेट करना है, लेकिन अन्य भक्तों को भी जो कृपा प्राप्त होती है उसको भी हमें सेलिब्रेट करना है। तभी हम द्वेष से मुक्त होंगे। उससे द्वेष करते बैठेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज विशेष दिन है ही, फिर भी तो हम चिड़ा दही जब ले रहे हैं, आज शायद बनेगा, इधर सब जगह पे बनता है, तो उसको स्वीकार करते समय यही आँख में, यही हमारे मन में रहना चाहिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, तभी जाके चैतन्य चरण प्राप्त हुए। और मुझे भी भक्तों की कृपा द्वारा ही गुरु की कृपा और बाद में जाके भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये ऊंचा भाव होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चिड़ा दही खाने के अलावा वो भी लेना है, लेकिन फिर भी ये भी। श्री पाणिहाटी चिड़ा दही उत्सव की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।